پیارے دوستو، آج ہم جسم پر ظاہر ہونے والی چند ان علامات کا ذکر کریں گے جو باڈی کے ایکسپائر ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ علامات نشانیاں ہیں جسم کے لیے بھی اور جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی کہ وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اور ہماری اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں، بلکہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں جن میں انہوں نے فرمایا کہ زندگی کی لذت کو توڑنے والی یعنی موت کو یاد کرتے رہا کرو۔ پیارے دوستو، انسان کے انجام سے ریلیٹڈ دو نشانیاں ہیں، ایک وہ جو موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہوتی ہے اور دوسری وہ جو آپ کو کچھ مہلت ضرور دیتی ہے۔ یہ دونوں ہی نشانیاں جان لینا نہایت ہی اہم ہے، چنانچہ ہم شروع کریں گے ان نشانیوں سے جو موت کے چند گھنٹے پہلے آپ کے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ ان باڈی سائنس نے سب سے پہلے نمبر بھوک اور پیاس کا مٹ جانا ہے۔ جب جسم کے ایکسپائر ہونے کے بالکل قریب آ جاتا ہے تو انسانی حاجات جیسے کہ بھوک اور پیاس کی ضرورت محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے اور لاخر جسم مزید توانائی کرنے کے لیے خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے، اور یہی ایسا سائیکل بن جاتا ہے کہ جب آپ کو خوراک اور پانی کی طلب نہیں رہتی تو آپ کا جسم کام کے لیے درکار توانائی باڈی ہی سے کشید کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا جسم مزید کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ وقت آ جاتا ہے جب تمام اعضاء جواب دے ڈالتے ہیں۔ انسان کے انجام سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کھراتا ہے اور اس پر خوف کے علامات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جسم میں کپ کپی وغیرہ طاری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پر کھانا اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بھی بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا بہت بڑی نشانی ہوتی ہے کہ روح کے جسم کے چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ خواتین و حضرات، پھر باری آتی ہے دل کی دھڑکن کی۔ ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والا دل کی دھڑکن موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نفس کو ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور یہ چراغ ان قریب بجھنے والا ہے۔ اور جب جسم میں خون کی روانائی متاثر ہوتی ہے تو جسم کا درجہ حرارت بھی کم ہونے لگتا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جسم کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں، ٹمپریچر بترتیب گرتا جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر جدا ہونے والے کو شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ اور پیارے دوستو، روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے تو محسوسات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی موت سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے ہاتھ، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیلا یا غربانی رنگ اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی اس جانب اشارہ ہوتا ہے کہ قدرت اب اس شخص کو کال کر رہی ہے اور اس کی اب اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کا وقت واضح آ رہا ہے۔ اسی طرح سانس کی ایک بے ترتیبی ایک واضح نشانی ہے جس میں سانس اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھتا چلا جاتا ہے۔ اور پیارے دوستو، سب سے آخر میں آتا ہے سکرات کی حالت، جسے عالمی نزا بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ میڈیکل سائنس اس حالت کو نہیں مانتی، مگر میڈا فزکس کو سمجھنے والے یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور ان کا باقاعدہ دیکھنے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ مختلف الفاظ بھی نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے الوجن ہو رہی ہے، اور جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوجن اور بھی ہو سکتی ہے۔ مگر سرفراز یعنی عالمی نزا اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل علم کا ہی کہنا ہے کہ ایسے موقع پر وہ لوگ جو کمزور دل ہیں وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، مریض کے قریب نہ رہیں اور اس کے قریب بالکل مت روئیں، کیونکہ جسم کی ستائش کام کر رہی ہوتی ہے۔
और वो मोहब्बत करने वालों को तलकीन में देखना ये भी एक तकलीफ है। इसके रुखसत होने वाली जिस्म की रूह को तकलीफ में मुब्तला न करे और अपने जज्बात पर काबू रखे और ऐसे मौके पर एक्सपायर होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाए और नरम हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरे और बार बार उसकी जगह तब्दील न करे और जितना मुमकिन हो उनके लिए सुकून फराहम करे और उस पर यह अमल ये ट्रांजेक्शन आसान हो सके। और अहले इल्म ही इस मौके पर जारी एक रूटीन्स के बारे में लिखते हैं कि कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज ऐसा मत करें। मरीज को मजबूर करने की बजाय आहिस्ता आवाज में उसके करीब ये कलिमात अदा करें ताकि वो सुने, क्योंकि उन कलिमात की ही काम कर रही होती है। और बाज़ औक़ात इस कदर लाहिर और कमज़ोरी जिस्म पर तारी हो जाती है कि ज़ुबान हरकत नहीं कर रही होती। चुनांचे अगर वो सुन सके और उन्हें दिल में भी अदा कर ले तो कामयाब बन जाएगा। और अहले इल्म का मानना यह है कि याद रखें, बतौर मुसलमान वो ये कलिमात अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा अदा कर चुका है, इसलिए अगर वो मौके पर ज़ुबान की कमज़ोरी की वजह से ये कलिमात अदा न कर पाया तो कोई बात नहीं और हरगिज़ उसे गुनाहगार शुमार मत करें। अल्लाह ताला ने उसकी ज़ुबान में ये कलिमात उसकी ज़िंदगी से सुन रखे होते हैं और अल्लाह बड़ा ही गफूर रहीम है। ख़ातिन व हज़रात, ये तो वो निशानियाँ थी जो माहिरीन के मुताबिक मौत से सिर्फ चंद घंटे पहले तारी होते हैं। अब बात करें तो कुछ ऐसी निशानियाँ की जो कि रूटीन मैटर हैं और लोग उन्हें मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, लेकिन माहिरीन की राय में ये वो निशानियाँ होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला करके मौत की जानिब धकेल सकती हैं। इन निशानियों में सबसे पहली निशानी है वज़न में तब्दीली। वज़न में तेज़ी से आने वाली तब्दीली हमेशा सिर्फ खाने की ज़्यादती से नहीं होती। सेहत से मुतालिक बहुत सी पेचीदगियाँ आने वाली तब्दीलियों की वजह से हो सकती है। माहिरीन का मानना है कि हाई रोड कैलेंडर्स पैदा होने वाली खराबियों की वजह से हार्मोन्स का अखराजात बढ़ जाता है और हार्मोन्स का अहम तवाज़ुन सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा करता है। इसी तरह अगर आप दिन के इख्तिताम पर अगर अपने हाथों, पैरों या टांगों पर सूजन महसूस करते हैं तो ये एडिमा की अलामत हो सकती है। एडिमा की कई वजूहात हो सकती हैं। सुबह के वक्त चेहरे और आंखों के नीचे सूजन गुर्दे से मुतालिक मसाइल निशानदही बयान करती हैं। इसके लिए भी मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़रूरी है, वरना हालात बिगड़ कर आपको मौत की जानिब ले जा सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और नर्जिकल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सूजन का बाइस बन सकती है। अपने ब्लड प्रेशर को बहाल रखने और दिल के डॉक्टर से मुआयना लाजमी है। वेरिकोन वेन रगों में बिगाड़ की एक अलामत है जिसकी वजह से खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा टांगों की रगों के साथ होता है, इसलिए इसकी बिना पर टांगों में सूजन महसूस होने लगती है। माहिरीन के मुताबिक आपकी ज़ुबान की रंगत बहुत सी बीमारियों की निशानदही कर सकती है। ज़ुबान की सरगाह पर सफ़ेद रंग की परत ये निशानी करती है कि जिसमें कोई बीमारी मौजूद है। अलबत्ता अगर ये परत बारीक है तो फिक्रमंदी की कोई बात नहीं, मगर मोटी परत की मौजूदगी ये जरूरी है कि डॉक्टर से फौरी तौर पर मुआयना करवाया जाए। जुबान पर सफेद दाग की निशानदही हजम में ताल्लुक रखती है। इस अलामात के साथ अगर अक्सर पेट के दर्द की शिकायत है तो इलाज जरूरी है। मुंह में कड़वाहट और जुबान पर मोटी पीली परत पर इस बात की निशानदही करती है कि जिस्म को जिगर और पित्ते से मुतालिक मसाइल दरपेश हैं। और ये वो तमाम निशानियां हैं जिन्हें अक्सर मामूली समझकर हम इग्नोर कर रहे होते हैं, मगर ये बड़ी बीमारी का पेश खेमा साबित हो सकते हैं जिसका हतमी अंजाम मौत है। और वैसे तो सर दर्द का हो जाना कोई इतना अहम मसला नहीं है और इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि नज़र की कमज़ोरी का शाखसाना भी हो सकता है जिससे आंखें टेस्ट करवा सकें और ऐनक लगा के बचा जा सकता है। या फिर इस सर दर्द की वजह किसी किस्म की एलर्जी भी हो सकती है। इसे किसी भी अच्छी मेडिकल से दूर किया जा सकता है। ताहम सर में रहने वाले मुस्तकिल दर्द किसी और मर्ज की अलामत भी हो सकता है। माहिरीन अमराज़े सर और गर्दन का कहना है कि सर में मुसलसल दर्द रहने वाला दिमाग में रसोली और दिमागी दौरे जैसे खतरनाक और पेचीदा अमराज की अलामत भी हो सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये फ़र्क कैसे किया जाए कि ये दर्द आम है या किसी खास मर्ज की जानिब इशारा कर रहा है। तो इसका हल वही है जो पहले
पहले बयान किया जा चुका है कि पहले कदम के तौर पर अपनी आंखें टेस्ट करवाई जाएं और अगर ये एलर्जी का मामला हो तो इसकी अवधियात इस्तेमाल की जाएं और इसके बावजूद अगर सर दर्द ठीक ना हो जल्द अज जल्द किसी मुस्नदी डॉक्टर से रुजू किया जाए ताकि मर्ज की सही तशखीस हो सके। और ये खातिन और हजरात, ये भी बॉडी साइज जो आपके जिस्म में जाहिर होते हैं और किसी बड़ी बीमारी का खेमा साबित हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि सेशन से आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। अगर आपको हमारी ये काविश, ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मज़ीद ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।